Dear students, we are just going to start the topic today, that is cell, the basic structure, basic function, the general introduction. I think you all knows very well about the cell. What is cell you understand well. In the previous classes also you have just gone through the cell. But in the senior classes this is the first time when we are just going to discuss the cell. So what is cell? I'm just going to start the points one by one from the very fundamental points, from the very fundamental basic. I'm just going to start the topic cell. This is very much clear. If you have to understand what is cell, so the first statement whatever is given always for the cell is a structural and functional unit of life. Cell is a structural and functional unit of life means what? If you have to explain what is the meaning of a structural and functional unit of life, remember each and every structure of the living organism is made of cell, hence it is a structural unit of body. Just try to understand, cell is the smallest part of the body. Cell is the smallest part of the any living creature that is going to communicate, that is going to coordinate all sort of the function of the living system. हम इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे एक बिल्डिंग की बात करें तो कंप्लीट बिल्डिंग इज मेड ऑफ सम ऑफ द ब्रिक्स, बहुत सारे ब्रिक्स से मिलके बना होता है, और यदि ब्रिक्स को हम निकालते चले जाएंगे तो एंटायर बिल्डिंग विल गेट डिस्ट्रॉयड. तो सिमिलरली द कंप्लीट बॉडी, योर बॉडी कैन बी कंपेयर्ड विद द बिल्डिंग. आपकी बॉडी बिल्डिंग के साथ में कंपेयर हो सकती है, और उसमें लगने वाली ब्रिक्स क्या होंगी? आपकी सेल्स होंगी. समझ में आ रहा है? द सेल इज स्ट्रक्चरल यूनिट. जिस तरीके से बिल्डिंग की स्ट्रक्चरल यूनिट ब्रिक्स हैं, सेम उसी तरीके से योर बॉडीज स्ट्रक्चरल यूनिट आर द ब्रिक्स, योर बॉडीज स्ट्रक्चरल यूनिट्स आर द सेल्स. सो इज इट क्लियर? आपकी बॉडी की बेसिक यूनिट, हर एक तरीके का स्ट्रक्चर किसका बना होगा, चाहे आप बात करें अपनी बॉडी में लीवर का, चाहे बात करें किडनी की, चाहे बात करें स्प्लीन की, किसी भी तरीके की स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ऑल द स्ट्रक्चर्स आर बेसिकली कंपोज्ड ऑफ द cells. That is why cell is called as structural unit. One by one we are discussing structural unit, functional unit क्यों कहते हैं वो अपन समझते हैं. सो स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब समझ में आ गया, बॉडी की सबसे छोटी यूनिट जिससे मिलके सारी स्ट्रक्चर्स बनी होती हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल यूनिट. सो ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड ऑफ द सेल्स, हैंस इट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी. ये समझ में आ रहा है? ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज made of the cell, that is why this is called as structural unit of the body. Just now I have just made you clear कि अगर मैं बात करता हूँ अपनी आईज का, तो आईज is also made of some of the cells. If I am just going to discuss the structure of liver, तो लीवर भी कुछ सेल्स से बना होगा. तो हर एक स्ट्रक्चर किसी ना किसी बेसिक यूनिट से बनी होती है. जिस तरीके से बिल्डिंग बनी होती है ब्रिक्स से, उसी तरीके से बॉडी बनी होती है, स्ट्रक्चर्स बनी होती हैं सेल्स से. So the smallest unit of the creation, smallest unit of the body is the cell. Moving on to the next, why this is called as the functional unit of the body. My dear child, all the functions of the life completes at the level of cell. That is why this is called as functional unit of life. All the function of the body is being completed at the level of cell. That is why this is called as functional unit of life. अब क्वेश्चन उठता है कि कैसे, आपको अगर ये समझाना हो, क्वेश्चन आता है sometime in your examination, the question may be there कि the cell is a functional unit of the life, justify the statement. Cell is the structural unit of life, justify the statement. So अगर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि cell is the functional unit of life, justify the statement, तो कैसे justify करेंगे? You need to understand. जस्ट नाउ वी हैव कंप्लीटेड, और आई थिंक समझ में आ गया होगा कि कोई भी स्ट्रक्चर होगी वो किससे बनी होती है? लीवर से बनी थी. कोई भी आर्गन, सॉरी जैसे लीवर का एग्जांपल लिया था हमने, तो कोई भी आर्गन होगा वो किसका बना होगा? पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का बना होगा, दैट इज कॉल्ड एज सेल. सिमिलरली अगर हम लीवर के फंक्शन की बात करेंगे तो लीवर इज नॉट गोइंग टू परफॉर्म ऑल सॉर्ट ऑफ द फंक्शन. वॉट एवर द फंक्शन ऑफ लीवर इज देयर, दैट इज बीइंग कंप्लीटेड एट द लेवल ऑफ सेल्स ओनली. आपको याद होगा, आपने डाइजेशन पढ़ा हुआ है, रेस्पिरेशन पढ़ा हुआ है. तो डाइजेशन और रेस्पिरेशन में इफ यू हैव रिमेंबर, आई एम जस्ट गोइंग टू टेक द सिंपल एग्जांपल ऑफ डाइजेशन. द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन गेट्स कंप्लीटेड देयर इन एलिमेंट्री कैनाल. आफ्टर डाइजेशन, finally the digested food has to move into the blood vessels. Blood vessels will carry it to the liver. Liver will send it to the cells where they have to finally used up
यूज्ड अप जहां पे प्रॉपर मेटाबॉलिज्म होगी, फाइनल मेटाबॉलिज्म कहाँ होती है, सेल्स के अंदर। इसी तरीके से आप रेस्पिरेशन की बात करेंगे, सो द यूज ऑफ ऑक्सीजन अकर्स इनसाइड द सेल, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी अकर्स इनसाइड द सेल, actual metabolites, actual waste materials are produced inside the cell. So whatever the function of the body is there, that all functions are being completed at the level of cell. So this is what the cell is considered as functional unit of life, फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर है, स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों, क्योंकि पूरी की पूरी बॉडी, हर स्ट्रक्चर, हर ऑर्गन, हर टिश्यू इज मेड ऑफ द सेल, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल यूनिट। मींस व्हाट कि इफ यू आर जस्ट गोइंग टू स्टडी द डीप स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, यू हैव टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेकेंडली फंक्शनल यूनिट क्यों, क्योंकि हर एक स्ट्रक्चर का फंक्शन किस लेवल पे कंप्लीट होता है, सेल के लेवल पे कंप्लीट होता है, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। सो दीज 2 पॉइंट्स आर क्लियर। ध्यान रखें, क्वेश्चन आता है कि जस्टिफाई द स्टेटमेंट और एक्सप्लेन व्हाई द सेल इज कंसिडर्ड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। Now if you could we are just going to understand more point about that, और बेहतर तरीके से समझते हैं कि how the cell can be explained as a structural or functional unit of the body। तो उसको समझने के लिए we need to see the hierarchical order of the structure of the body। hierarchical order of the life देखें, body organization देखें, तो सबसे पहले the simplest molecule by which the body is being created, or the simplest molecule from which the life has been originated, that is a non-living material, एटम। एटम से मिलके बना हुआ है, सबसे पहले एटम्स का फॉर्मेशन हुआ, दोज एटम्स कंबाइंस टू फॉर्म द मॉलिक्यूल्स, एंड दीज मॉलिक्यूल्स व्हेन कन्वर्टेड इन फॉर्म ऑफ लाइफ मॉलिक्यूल्स दे फॉर्म्स द सेल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सबसे पहले नॉन लिविंग मटेरियल था, दोज मटेरियल्स आर कॉल्ड एज एटम्स, these combines to form the molecules, और जब ये molecule life molecule like protein, carbohydrate, lipids के form में convert हुए, they are being surrounded with some of the limiting membrane, then they are called as cell। और यही cells बाद में aggregate होती हैं, accumulate होती हैं और combine होके बनाती है एक नई structure, that is called as tissues। टिश्यूज कंबाइंड होंगे टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन, दैट इज कॉल्ड एज आर्गन्स, और फिर उसी तरीके से एक जैसे काम करने वाले आर्गन्स के ग्रुप को हम कहते हैं आर्गन सिस्टम। आर्गन सिस्टम मीन्स टू से द डाइजेशन इज अ फंक्शन, बट डाइजेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैनी स्ट्रक्चर लाइक दैट। माउथ का काम भी वहां पे आएगा, फेरिंग्स भी उस जगह पे यूजफुल होगा, स्टमक भी यूजफुल होगा, इंटेस्टाइन भी यूजफुल होगा, and other digestive glands are also being useful there। So all these structures which are going to perform a common function, they are combinedly called as organ system। तो यहाँ क्लियर हुआ आपका, सबसे पहले एटम्स बना, एटम्स कंबाइन होने से मॉलिक्यूल, जैसे ही वो लाइफ मॉलिक्यूल के फॉर्म में कन्वर्ट हुए, लिमिटिंग मेम्ब्रेन के साथ में बाहर आ गए, दैट टाइम दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सेल। सेल एग्रीगेट होती है एंड दे आर गोइंग टू फॉर्म द टिश्यूज। टिश्यूज विल गेट एग्रीगेटेड टू फॉर्म द आर्गन्स। आर्गन्स एक साथ मिलेंगे जो एक जैसा काम करने वाले, और वो बनाएंगे आर्गन सिस्टम। Organ system fuse together to form the body structure, and finally the body structures combinedly called as organism। तो organism का फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, सेल के ऊपर। organism की स्ट्रक्चर किसके ऊपर डिपेंड करती है, सेल के ऊपर। सो दिस इज व्हाट द सेल इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। नाउ टेक अ लुक ऑन द डेफिनेशन। अगर आपको सेल को डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करेंगे? आई एम जस्ट गोइंग टू रीड आउट डेफिनेशन वन बाय वन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी एक डेफिनेशन तो हमने देख ही लिया है, द सेल इज द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स। द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द टू बेसिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो सेल वो यूनिट है जिसके थ्रू स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, उसका फंक्शन होगा इन ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो दिस इज व्हाट द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल। Next one, the cell is the smallest. Next definition, the cell is the smallest living unit which can survive independently। बहुत important definition है ये। The cell is the smallest unit, you can understand the smallest structure of the body, that is the smallest living molecule is the cell। So cell is the smallest structure which is living का मतलब capacity of division। हम बहुत सारी properties देखेंगे आगे चल के। The cell is the smallest living unit which can survive independently, जो खुद survive कर सकती है। The cell cannot depend on, cell never depends on the another type of the structure or tissues for their survival। So cell is the smallest living unit जो खुद survive कर सकती है, self sustain हो सकती है, इसको develop होने के लिए, इसको अपने आप को grow कराने के लिए, does not demand the availability of any other structure or cell or tissues। Accordingly
और बेहतर डेफिनेशन देखते हैं तो द मोस्ट एक्सेप्टेड, वाइडली एक्सेप्टेड, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन वाज गिवन बाय लुई एंड सिकेविच इन 1963. The highly accepted or mostly accepted, universally accepted definition of the cell was given by Louis and Sikiewicz in 1963. The cell, what they said, the cell is the smallest unit of biological activities. The cell is the smallest unit of biological activities surrounded by a semi-permeable membrane which can self-duplicate in any medium. So cell is what? Cell is the smallest unit of biological activities which is surrounded by a semi-permeable membrane which can self-duplicate in any of the medium. My dear child, is definition say the structural part of the cell is also being cleared and functional part of the cell is also being cleared. जो कुछ cell की एक perfect definition हो सकती थी वो हुई है. The cell is the smallest unit, you can understand. Cell सबसे छोटी यूनिट होती है. Of the biological activities, सारे biological function हमने देखा. The cell is structural and functional unit. तो पहली definition को इन्होंने involve कर लिया. The cell is smallest unit. पहली दोनों definition मिल गई. Of the biological activities, biological function को कंट्रोल करती है. सारे के सारे फंक्शन, सारी की सारी एक्टिविटीज सेल के लेवल पे ही होंगी. दैट इज बीइंग सराउंडेड एक्सटर्नली. हमने देखा था व्हेन बायोमोलिक्यूल्स आर बीइंग सराउंडेड बाय अ लिमिटिंग मेम्ब्रेन, तो जब बाहर की तरफ इसमें एक बाउंड्री आ जाती है, दैट बाउंड्री मस्ट बी अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. Why semi-permeable membrane? Because this boundary should allow the movement of materials in and out, which can, बहुत important property है. And the cell is the structure which can duplicate in any medium, either inside the living medium or inside the non-living medium. non-living medium में भी अपने आप को duplicate कर सकती है, और ये non-living medium में अपने आप को duplicate करने की कैपेसिटी के कारण ही आजकल हम टिश्यू कल्चर टेक्निक का यूज कर पा रहे हैं. सो इज इट क्लियर टू यू ऑल? लुई और सिकिएविट्ज ने क्या कहा? सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज दैट इज सराउंडेड बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन which can duplicate, self duplicate, reproduction कर सकती है, अपना multiplication कर सकती है in any of the medium, whether it is living medium or non-living medium. Moving on to some more points. ठीक है, सेल के बारे में हमने देख लिया. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, लाइफ एक्टिविटीज इसी में होती हैं, सभी जगह डुप्लीकेट कर सकती है, लिमिटिंग मेम्ब्रेन से घिरी होगी, लाइफ मॉलिक्यूल्स होंगे, एवरीथिंग दैट वी हैव अंडरस्टूड टिल नाउ. बट एक क्वेश्चन याद रखना हमेशा, वायरसेस आर द एक्सेप्शन ऑफ द सेल. वायरसेस के ऊपर सेल की कोई भी डेफिनेशन एप्लीकेबल नहीं होती है. वायरसेस आर द कंप्लीट एक्सेप्शन ऑफ द definition. Viruses cannot have such kind of adaptability because virus is virus. Virus is a kind of non-living particle which is able to duplicate itself inside the living medium only. और cell की definition क्या होती है? Cell can duplicate anywhere, whether it is non-living or it is living medium. तो viruses are the exception of all those definition because they cannot duplicate in outside of the body. They duplicate only in the body of host organism. But cell is the structure which can duplicate whether it is outside of the body or inside of the body. So this is clear to you all. Some more points. Cytology, very important, easy point. The study of cellular structure and function is called as cytology. Cell biology. Nowadays we are using the term cell biology. Cell biology is the vast term that we are using to explain the cell structure function. Usually what happened in the initial time period when there were less instrumentation, less techniques were developed, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था, बहुत एडवांसमेंट नहीं था टेक्निक में, उस समय हम केवल फंक्शन और स्ट्रक्चर के बारे में ही स्टडी कर पाते थे. तो दैट टाइम द सेल वाज ओनली स्टडीड अंडर द साइटोलॉजी. तो व्हेन वी आर स्टडीइंग ओनली स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल, दैट टाइम दिस इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी. बट नाउअडेज ड्यू टू द हाई इंस्ट्रूमेंटेशन, हाई टेक्निक्स हैज बीन डेवलप्ड, ये पॉसिबल हो पाया कि वी कैन स्टडी द लाइफ ऑफ सेल एट द मॉलिक्यूलर लेवल, फंक्शन ऑफ द सेल एट द मॉलिक्यूलर लेवल. हम सेल्स का एसोसिएशन देख पाते हैं किसी दूसरी ब्रांच ऑफ साइंस के साथ में. सो इन सारी स्टडीज को एक साथ मिला के हम क्या कहते हैं? सेल बायोलॉजी. सेल बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ सेल एट द मॉलिक्यूलर लेवल.
So what is the cell biology? Study of cell at cellular and molecular level. Molecular level, cell किन molecule से बना है, what kind of components are there, whether कार्बोहाइड्रेट, विच कार्बोहाइड्रेट इज देयर, कौन सा प्रोटीन है, किस तरीके के प्रोटीन का अरेंजमेंट होगा, लिपिड्स हैं, कितना लिपिड्स है, कैसे अरेंज होंगे, किस तरीके से वो पार्टिसिपेट करेंगे इन द फंक्शन ऑफ दैट. सो दैट इज व्हाट द सेल बायोलॉजी. along with that the structure and function of the cell, हम जो अभी तक देख ही रहे थे. Study of hereditary, because one of the biomolecule is DNA and RNA. So DNA and RNA are associated with the inheritance of the characters. So यहाँ पे वो उसके साथ पे भी जुड़ जाएगा. Physiology of the cell, biochemical composition of the cell, biochemical mechanism of the cell, metabolism, किस तरीके से proteins बनना है, बिगड़ना है, कैसे carbohydrate बनना है, बिगड़ना है, how the cell will utilize these material, storage, destruction, everything will be studied under the cell biology. जब vast experiences में अपन use करेंगे term को, that time this is called as what? Cell biology. Otherwise this is cytology. The limit are narrow utilitarian, narrow concept is cytology, while the broad concept, everything which can be studied inside the cell, is called as cell biology. Is it okay? Now moving on to the next point, that is history of the cell. Some points of the history we have to discuss here. Remember my dear child, the cytology is itself a big branch or a vast branch, a self-sustaining branch of the biology. So this is very much difficult to find out all the historical aspect of the cell at the right time now only. We'll discuss many more historical points, many more historical concept whenever we will there during the concept studies. But कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमको यहाँ पे समझना जरूरी है. So history of cell, हम सब जानते हैं the cell is microscopic structure. Microscopic structure means we cannot see or observe the cell without the use of microscopes. तो सेल की स्टडी या सेल की हिस्ट्री किसके साथ में जुड़ी होगी? माइक्रोस्कोप के साथ में जुड़ी होगी. सो रिमेंबर, the cell study cannot begin without the invention or without the discovery of microscope, my dear child. So whenever the microscope was studied, then only the structure of cell was has to be observed. So first of all, the first microscope was prepared by Jacques Janssen. So cell history began with the invention of microscope, and first microscope was found by the Janssen in 1590. सबसे पहला माइक्रोस्कोप जेनसन ने बनाया था. He was an optometrician, और वहां बैठे बैठे उन्होंने he has arranged some of the lenses and he was able to observe the big sized image of any of the object there. इसी माइक्रोस्कोप को, द सिंपल माइक्रोस्कोप वाज मेड बाय जैनसन. द सेम माइक्रोस्कोप वाज इम्प्रोवाइज्ड बाय रॉबर्ट हुक. रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अपन डील करने जा रहे हैं. द सेम माइक्रोस्कोप वाज इम्प्रोवाइज्ड बाय द रॉबर्ट हुक in 1665, and that microscope was known as compound microscope. Compound इसलिए because that microscope was made of combination of the lenses. कई तरीके के lenses का यूज किया हुआ था. ऑब्जेक्टिव है, मिरर है, इस तरीके के lenses का यूज किया. तो रॉबर्ट हुक was the person who prepared or who improvised the general microscope or ordinary microscope in form of the compound microscope, and by his own compound microscope, because आप जानते हैं कि whenever you are just going to invent out something new, you are more curious to find out the uses of that. So when he prepared that microscope, that time he was very much curious to find out whatever is available there on, और उसको पहचानने के लिए वो हर एक चीज को देखना शुरू करते थे. एंड दैट वाज द क्यूरियोसिटी ऑफ रॉबर्ट हुक दैट लेड टू द स्टडी ऑफ और हिज इन्वेंशन ऑफ और ऑब्जर्वेशन ऑफ सेल फॉर द फर्स्ट टाइम. व्हाट ही डिड, he just found out the bottle cork and he just taken out the thin slices of the bottle cork. Under his microscope he was shocked when he observed that thin slices of the bottle cork was full of the chambers which were completely hollow or vacant chambers. These hollow or vacant chambers were referred as cell by the Robert Hooke in 1665. Cell means itself a chamber. Cellula, the hollow space. The Latin word cellula is meant for hollow space. So Robert Hooke was the first person who used to find out the presence of cell
in any of the structure, but remember the Robert Hooke has studied the structure of cell or observed the cell that is in cork, and cork is a non-living structure. So Robert Hooke observed the cell in non-living structure. The cell which was observed by Robert Hooke was actually the non-living cell. So is it clear to you all? In 1665 Robert Hooke was the first person who used to identify or who used to observe the cell, but it was a non-living cell. So I think it is very much clear to you all. The cell which was observed by the Robert Hooke, that was a non-living cell. He has presented the concept of cell in his book that is known as Micrographia. He has presented the concept of cell in his book Micrographia. In the lesson 18th of the Micrographia, he has presented the concept. Now moving on to the next milestone in the history of the cell biology, the Antony von Leeuwenhoek. My dear child, you knows very well the Robert Hooke was the fellow who used to observe the cell for the first time. सबसे पहले Robert Hooke ने observe किया था, लेकिन the Robert Hooke has observed the cell that was non-living. Antony von Leeuwenhoek was the person who used to observe the first living cell. ध्यान रखना है, नीट के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. Antony von Leeuwenhoek was the person who used to observe the first living cell. पहली living cell किसने ऑब्जर्व की थी? Antony von Leeuwenhoek ने in 1674. ये भी ऑप्टोमेट्रिशियन थे. ही हैज आल्सो मेड हिज ओन माइक्रोस्कोप, उसको इम्प्रोवाइज किया एंड सेम प्रैक्टिस ही डिड. इन्होंने हर लिविंग सेल को उठा के देखना शुरू किया एंड एट दैट टाइम ही यूज्ड टू फाइंड आउट ऑब्जर्व मैनी ऑफ द सेल लाइक बैक्टीरिया, स्पर्मेटोजोआ, आरबीसी, सो मैनी लिविंग सेल ही यूज्ड टू फाइंड आउट. और इन्होंने इन सारी सेल्स को एक साथ मिला के क्या कहा? एनिमलक्यूल. सो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक वाज द पर्सन हु यूज्ड टू फाइंड आउट द लिविंग सेल फॉर द फर्स्ट टाइम. और इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से सबसे पहले बैक्टीरिया को देखा. अगर क्वेश्चन आता है व्हाट दीस थ्री व्हाट आई हैव रिटन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये पूछा जाता है हु यूज्ड टू ऑब्जर्व द बैक्टीरिया फॉर द फर्स्ट टाइम. सो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक. स्पर्मेटोजोआ को सबसे पहले किसने देखा था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने. आरबीसी को किसने ऑब्जर्व किया? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने. और एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में बहुत ज़्यादा काम किया. दैट इज़ वाई ही इज यूज्ड टू स्टेटेड एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ऑल्सो. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, एक लंबे गैप के बाद में रॉबर्ट ब्राउन का नाम हमको देखना है. द रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 ही डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल. ही यूज्ड टू स्टडी ऑन द ऑर्किड प्लांट्स. So Robert Brown studied the presence of nucleus inside the cell in the orchid plant. Next one in 1835, the Francis Dujardin. Dujardin observed the cell is filled with some jelly-like material inside. Dujardin observed in 1835 the cell is found to be filled with a jelly-like material inside. That jelly-like material inside was referred as sarcode by the Dujardin. Dujardin ने देखा कि सेल के अंदर एक लिक्विड मटेरियल है दैट इज नॉट ट्रूली लिक्विड, उसकी लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, दैट इज हाईली विस्कस and that viscous liquid was referred as the sarcode by the Dujardin. In the same year, the Purkinje used to provide the name as protoplasm to the sarcode, or that liquid was referred as protoplasm. That name what we are using nowadays, that was given by the Purkinje. तो ये क्लियर हुआ. रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस देखा, डुजार्डिन ने उसके अंदर जेली लाइक मटेरियल देखा, दैट वाज रेफर्ड एज द सार्कोडे बाय डुजार्डिन. बट the Purkinje in the same year used the term protoplasm for that liquid present inside the cell, and that liquid is called as protoplasm because protos means the first, the most primitive, plasma means substance, सबसे पहला substance present inside the cell is called as protoplasm. So this is clear to you all. अब इसके बाद की जो भी हिस्ट्री है वो जैसे जैसे अपन सेल ऑर्गेनेल्स में बढ़ेंगे, सेल की स्टडीज में बढ़ेंगे, दैट टाइम विल डिस्कस, बिकॉज दैट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू लिस्ट आउट ऑल द हिस्टोरिकल पॉइंट हियर, और वो आपके लिए भी डिफिकल्ट होगा टू क्रेम ऑल दोज थिंग्स. और बाद में करते जाएंगे तो दिस विल बी इजी वन टू रिमेंबर ऑल दोज थिंग्स. सो इज इट क्लियर टू यू ऑल? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द सेल बायोलॉजी. द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज सेल थ्योरी. सो रिमेंबर डियर स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मान के चलें फाइनल एग्जाम में मिलता है, मान के चलें नीट एग्जाम में ये क्वेश्चन आना ही आना है. कौन से क्वेश्चन आते हैं दैट आई विल एक्सप्लेन यू फ्रॉम दिस पोर्सन. द सेल थ्योरी. Cell theory, the most basic concept, most basic principle, most basic hypothesis of the cell biology, that was first time presented by the Dutroset.
The concept of cell theory was first presented by the Dutroset in 1824. The concept of cell theory was first time presented by Dutroset in 1824, but it was not very much accepted by the researchers, by the workers at that time. बाद में दो बेसिक वर्कर्स आए जिनके नाम पे सेल थ्योरी को जाना जाता है. लेटर ऑन इन द 1838 and 1839, two workers were there, two scientists were there, those who have rectified, modified and presented the cell theory in new form. So the actual concept of cell theory was presented by two German biologists. So clear है, पहली बार पूछा जाता है अगर नीट में कि फर्स्ट टाइम हु प्रेजेंटेड द सेल थ्योरी, तो आपके लिए आंसर क्या होगा? ड्यूट्रोसेट वाज द पर्सन हु प्रेजेंटेड द सेल थ्योरी इन 1824, but the theory was not accepted by the researcher at that time. That is why the new theory was presented by two German biologists. The biologist number one is M.J. Sleden. M.J. Sleden, remember, बहुत important question discuss कर रहे अपन. M.J. Sleden in 1838 he has presented his concept. Remember, पूछा जाता है कि who presented the concept of cell biology first in case of plant cell, who presented in case of the animal cell. So M.J. Sleden was the botanist, so he has presented the cell theory for the plant cell. बहुत important point है. M.J. Sleden was the botanist, hence he has presented the cell theory in the plant cell. Plants के लिए बताया था cell theory इन्होंने क्या कहा? द सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑल द प्लांट सेल्स. बहुत बेसिक पॉइंट हम पहले ही देख चुके हैं. ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड ऑफ द cell. So plant cell, the plant structure is also made of the cell. So cell is the fundamental unit of all the plants. New cells originated from the nucleus inside the cell. ये थोड़ा सा डाउटफुल पॉइंट था, बाद में इसको रेक्टिफाई किया गया. उनका यह कहना था द न्यू सेल इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस प्रेजेंट इनसाइड द सेल एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द साइटोब्लास्ट. साइटोब्लास्ट मींस मतलब वो स्ट्रक्चर जिससे नई सेल का फॉर्मेशन होता है उसको अपन कहेंगे साइटोब्लास्ट. सो न्यू सेल्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस प्रेजेंट इनसाइड द सेल. इज इट क्लियर? New cell originated from the nucleus inside the cell and the structures from which the new cell is originated is called as cytoblast. So ये क्लियर हो अपने को साइटोब्लास्ट. रिमेंबर माय डियर चाइल्ड, अब आप आगे साइटोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ टर्म्स याद रखने होंगे. बायोलॉजी कठिन नहीं है, कठिन होती इसलिए बिकॉज द टर्म्स आर वेरी मच डिफिकल्ट. सो यू मस्ट लर्न, यू मस्ट रिमेंबर. ब्लास्ट अगर वर्ड कहीं पे लगा हुआ है तो ब्लास्ट का मतलब द फॉर्मिंग स्ट्रक्चर. द सेल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन आर कॉल्ड एज ब्लास्ट. When the classed word is written, then the cell responsible for the destruction. अब आपने बोला साइटोब्लास्ट, तो the cell which is forming the cells. एम्ब्रियोब्लास्ट, एम्ब्रियो बनाने वाली. ऑस्टियोब्लास्ट, बोन्स को बनाने वाली. इरिथ्रोब्लास्ट, आरबीसी बनाने वाली. हीमोब्लास्ट, ब्लड को बनाने वाली. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लास्ड सेल इसके अपोजिट, जो डिस्ट्रॉय करती हैं, डिस्ट्रक्शन करती हैं. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. तो स्लीडन ने किस में किया? प्लांट सेल में प्रेजेंट किया इन 1838. सेम टाइप के कॉन्सेप्ट पे दूसरा साइंटिस्ट या दूसरा बायोलॉजिस्ट भी काम कर रहा था. दैट वाज टी स्वान. He has presented the concept in animal cell. Zoologist, the Swan was zoologist and Sleden was a botanist. तो स्वान ने 1839 में कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया फॉर द एनिमल सेल्स. क्लियर? ये पूछा जाता है किसने प्लांट में दिया था, किसने एनिमल में दिया था. द स्वान हैज प्रेजेंटेड द कॉन्सेप्ट इन एनिमल सेल व्हाइल द Sleden has presented the concept in the plant cell. इन्होंने क्या बताया? The cell is the organized form of the protoplasm. थोड़ा सा नए तरीके से प्रेजेंट किया. The cell is the organized form of the protoplasm. Just now हमने देखा हुआ है the cell is internally having some liquid material present, और उसी liquid material में सारी की सारी लाइफ एक्टिविटीज़ होती हैं सेल की. उसी में सारे सेल ऑर्गेनेल्स मिलते हैं, उसी में सब कुछ होता है. तो दैट इज़ वाई इन्होंने बोला द सेल इज द ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ द प्रोटोप्लाज्म. The cell, second point what he stated, the cell is the fundamental unit of the animal cell. जो उनका पहला पॉइंट था, इन्होंने भी उसी पॉइंट को उठाया कि हर एनिमल सेल की फंडामेंटल यूनिट सेल होगी और उसी से पूरा एनिमल सेल का फॉर्मेशन होगा, एनिमल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा. एनिमल सेल लैक्स द सेल वॉल. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ही हैज ऑब्जर्व कि ऑल द एनिमल सेल्स आर लैकिंग द सेल वॉल बिहाइंड दैट. ये तीन बेसिक पॉइंट इन्होंने उठाए थे. When they presented the theory, so they find out many of the similarities in their theory. So later on in 1839, Sleden and Swan both altogether presented the combined cell theory. So cell theory is nowadays is known with the name of Sleden and Swan.
नॉट विद द नेम ऑफ स्लीडन और स्वान। लेकिन क्वेश्चन आता है नीट में कि स्लीडन ने बोला था कि स्वान ने बोला था, तो यू मस्ट रिमेंबर स्लीडन इज वर्किंग इन केस ऑफ प्लांट सेल, स्वान इज वर्किंग इन केस ऑफ एनिमल सेल। स्लीडन और स्वान दोनों ने 1839 में कंबाइंड एस्पेक्ट प्रोवाइड किया, दैट इज कॉल्ड एज कंबाइंड सेल थ्योरी। इसके पॉइंट उन्होंने क्या उठाए थे, ऑल द ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ वन और मैनी सेल, या तो यूनिसेलुलर होंगे या मल्टी सेलुलर होंगे, ऑल द ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सिंगल सेल और मैनी ऑफ द सेल्स, ऑल द सेल्स आर सिमिलर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर यूनिसेलुलर है तो कोई इशू ही नहीं है, बिकॉज सिंगल सेल इज प्रेजेंट देयर, बट इफ द मल्टी सेलुलर, सो मैनी ऑफ द सेल्स एंड द ऑर्गेनिज्म आर हैविंग मिलियंस ऑफ द सेल्स प्रेजेंट इन देम। तो ऐसा नहीं है कि इफ द ऑर्गेनिज्म इज मल्टी सेलुलर तो उसमें हर सेल अलग अलग होगी। ऑल द सेल्स वॉट एवर इज प्रेजेंट दे आर सिमिलर इन नेचर, सबके सब सेल्स एक दूसरे के सिमिलर ही होंगी। सो स्टूडेंट्स, अब ये तो क्लियर हो गया आप लोगों को सेल थ्योरी क्या है। सेल थ्योरी बहुत बेसिक थ्योरी है जिसमें ये बताया गया ऑल द ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल, और सेल के कारण ही उनकी स्ट्रक्चर है, सेल के कारण ही उनका फंक्शन है। सभी में एक जैसी सेल से मिलेंगी। अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें सारी सेल्स एक जैसी होंगी, और इन्हीं सेल से नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ये सारी चीज़ें सेल थ्योरी में दे दी गई थी। मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट वाज कवर्ड देयर इन द सेल थ्योरी। लेकिन इस सेल थ्योरी के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। व्हाट आर दीज एक्सेप्शंस? हमेशा ध्यान रखें, जब एक्सेप्शंस की बात आती है तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सपोज द क्वेश्चन इज देयर कि राइट डाउन फ्यू एक्सेप्शंस ऑफ द सेल थ्योरी, राइट डाउन सम कंडीशंस वेयर सेल थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल। तो वो एक्सेप्शंस हैं, द सेल थ्योरी इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द सेल डिवीजन। सेल थ्योरी ये तो बताती है द न्यू सेल इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, बट सेल थ्योरी इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन how these new cells are being originated. Cell theory is not able to explain the process of cell division. वो ये नहीं बता पाई कि how the cell is going to divide. This was the first failure. Cell division is not being able to cell division is not being cleared by the cell theory. ये सबसे पहला objection था, सबसे पहला failure था cell theory का. The second one is the major drawback, major disadvantage, major failure of the cell theory was the cell theory was not very much clear about the viruses. cell theory को अपन वायरस के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, because virus is able to grow only inside the living medium and it is lacking the cellular structure. Are you getting my point? वायरस केवल लिविंग मीडियम में ग्रो कर सकता है, पूरी तरीके से नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, इसमें कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं है। तो वाट एवर द पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी वाज गिवन, ऑल दोज पॉइंट्स आर नॉट अप्लाइकेबल फॉर द वायरसेस माय डियर चाइल्ड। तो वायरसेस के ऊपर ये थ्योरी कभी अप्लाई नहीं हो सकती। रिमेंबर क्वेश्चन आता है कि why the cell theory cannot be applicable on the viruses। तो उसके पीछे रीजन क्या है कि वायरस is made of non living particles, that is protein and RNA, or protein and the genetic material. Along with that, this is not having protoplasm, this is not having any of the cell organelles, इसमें कोई limiting boundary नहीं है, and it is having capacity of regeneration only inside the living body, नॉट आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो ये नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में हैंग करने वाली स्ट्रक्चर, सो दिस इज वाई, सो दिस इज व्हाट द सेल थ्योरी जो प्रेजेंट की थी स्लीडन और स्वान ने। स्लीडन ने किया था बॉटनी के लिए या प्लांट्स के लिए, स्वान ने किया था एनिमल्स के लिए, और बाद में कॉमन डॉक्ट्राइन आया। बट एक बड़ी प्रॉब्लम रही थी दैट द सेल थ्योरी वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। वो फेल हो गई थी टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डिवीजन, हाउ द सेल इज गोइंग टू डिवाइड। तो उसको समझाने के लिए नई थ्योरी प्रेजेंट की गई, दैट इज कॉल्ड एज मॉडर्न सेल थ्योरी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द मॉडर्न सेल थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट। रिमेंबर, हमेशा पूछता है नीट एग्जामिनेशन में। मॉडर्न सेल थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय रुडोल्फ विर्चो in 1855. Modern cell theory was presented by Rudolf Virchow in 1855. Dear student, इस थ्योरी में विर्चो ने उन्हीं चीज़ों को कवर किया जो चीज़ें पहले की सेल थ्योरी में फेल हो गई थी, जो पहले की सेल थ्योरी में कवर नहीं हो पाई थी। उस सेल थ्योरी की प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश की थी। द मेजर प्रॉब्लम वाज दैट इन दैट थ्योरी कि द थ्योरी वाज एबल टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ न्यू सेल बट वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डिवीजन। एंड हियर दे हैव इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू कॉन्सेप्ट, दैट इज व्हाट
omnis cellula e cellula रटना है ये कॉन्सेप्ट आपको. Rudolf Virchow stated the omnis cellula e cellula. Omnis cellula e cellula is a Latin statement. The Latin statement means the new cell originates from the pre-existing cell. What is the meaning of omnis cellula e cellula? The new cells originates from the pre-existing cells. So this is what you have to take care. याद रखें पहली थ्योरी में क्या बताया गया था कि there is फेलियर टू एक्सप्लेन द सेल डिवीजन. यहाँ पे उसी चीज को एक्सप्लेन किया गया है कि नई सेल की ओरिजिन पिछली सेल के डिवीजन से ही होती है. और न्यू सेल्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय द डिवीजन. अब इसी फैक्ट को कहा जाता है लॉ ऑफ सेल लीनियज. सेल लीनियज का मतलब वंश परंपरा. एक जेनेटिक मटेरियल किस तरीके से दूसरे सेल में जाता है, द जेनेटिक मटेरियल इज शिफ्टिंग फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल. हाउ दिस इज बीइंग एक्सप्लेन. सो ये इसी थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन किया गया. So this is what the modern cell theory is also referred as the law of cell lineage. क्या स्टेटमेंट्स दिए थे देखते हैं, एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं. All the RNAs are made of the cells and their product. I don't think कि अब समझाने की जरूरत है. सारे के सारे RNAs cells और उसके प्रोडक्ट से ही बने होते हैं. The cell is the structural and functional unit of life. In today's lecture from the very beginning we were just learning about that only. Third one, new cells originates from the pre-existing cell by cell division. This was the problem that was not covered by the earlier cell theory. This is what the Virchow has covered this point. Last point, ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल का भी डिवीजन हो जाएगा और वो जेनेटिक मटेरियल नेक्स्ट सेल में जाएगा. मतलब इनहेरिटेंस की कंडीशन, ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल की कंडीशन को भी एक्सप्लेन किया गया है थ्रू दिस थ्योरी. सो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ये स्टोर्स इन द डीएनए, ये न्यूक्लियस के अंदर होगा. जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्स इन द डीएनए एंड ट्रांसमिट्स एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन टू द नेक्स्ट सेल. तो इसीलिए सेल लीनिएज कहा गया. सो दिस इज व्हाट द मॉडर्न सेल थ्योरी. मॉडर्न सेल थ्योरी का ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ऑल द न्यू सेल्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय द सेल डिवीजन. एवरीथिंग वाज कॉमन, ओनली वन थिंग इज न्यू, दैट इज द न्यू सेल्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्रीवियस सेल फ्रॉम द सेल डिवीजन और बाय द सेल डिवीजन. और इसी ड्यूरेशन में जेनेटिक मटेरियल विल ट्रांसफर फ्रॉम वन सेल टू द अनदर सेल. दैट इज वाई द सेल लॉ इज आल्सो कॉल्ड एज law of cell lineage. So this is clear to you all. Moving on to the next point of the topic, the protoplasm theory. This theory is especially for the NEET examination. It was presented first by the Max Schulz in 1861. But the detail of the theory was given by Oscar Hertwig. Hertwig के नाम पे ही जानी जाती protoplasm theory in 1892. So presented by Max Schulz in 1861, but detail of the theory was given by Oscar Hertwig in 1892. So according to the theory, what the protoplasm theory states, according to the theory, the cell is formed due to the accumulation of protoplasm which covers externally by the cell membrane and encloses the nucleus. हम अभी तक में यही सारी चीजें पढ़ के आए हैं. The cell is formed by the accumulation of protoplasm. किसी दूसरे स्ट्रक्चर से नहीं बनी. The protoplasm accumulates first, then it gets surrounded by the cell membrane or limiting membrane, और उसके अंदर एक न्यूक्लियस आ गया. तो किसी भी सेल के स्ट्रक्चर में तीन बड़ी चीज हो गई, एक तो प्रोटोप्लाज्म, दूसरा न्यूक्लियस और तीसरा उसका membrane. So three major structures are there. So cell is formed due to the accumulation of the protoplasm which covers externally by the cell membrane and encloses a nucleus. So number one nucleus, number two cell membrane, third one is protoplasm. So three major structures of the cell is there. So this is all about for the today's lecture. Today we have completed the first part of the basics of the cell. Now we will move on to the some more points about the basics of the cell in the further lecture. So till the time, thank you.